Hello students, today we are going to take exercise 1.5 of set theory. You are already familiar with the concept of union, intersection, complement of the sets. ये एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है. देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ. u इसके इक्वल गिवन है 1 to 9 all natural numbers. a equal to 1 2 3 4. b equal to 2 4 6 8. c equal to 3 4 5 6. 1 2 3 4 2 4 6 8 3 4 5 6. What we need to find? First part is a complement. Now it means a complement with respect to u. क्योंकि यूनिवर्सल सेट u है, तो a complement का मतलब हो गया a complement with respect to u. a complement का मतलब है जो a में है वो नहीं लेंगे, बाकी के लेंगे. तो 1 2 3 4 छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा 5 6 7 8 9. That's the answer. Second part is b complement. b complement का मतलब है b वाले नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे. 1 ले लेंगे, 3 5 7 9. 2 4 6 8. 1 लिया, 3 लिया, 4 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया. टोटल थे 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे कितने b में 1 2 3 4 और 5 यहाँ आ गए. थर्ड पार्ट देखें. इट इज a यूनियन c का होल कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले a यूनियन c निकाल लेते हैं. a यूनियन c किसके इक्वल आएगा? दैट मींस द एलिमेंट्स व्हिच आर इन a और इन c. दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे. 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा. 1 2 3 4 यहां से आ गया, 5 और 6 यहां से आ गया. अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स लेने हैं जो u में है. तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ दें, क्या बचा 7 8 9. 7 8 9. So you leave these elements and take the remaining one and you get a union c whole complement. Then it is a union b whole complement. That is the fourth part, I think. Yes. So first find a union b. What it will be? 1 2 3 4 completed. 1 2 3 4. 2 4 इंक्लूड हो गए, 6 8 आएगा. कॉम्प्लीमेंट लेना है. वन टू थ्री फोर लीव दीज एलिमेंट्स. ये नहीं लेने, बाकी के लेने हैं. 5 आएगा, फिर इसमें 7 है और 9 है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज a complement whole complement. That is fifth part. a complement whole complement. आपको मैंने डायरेक्टली बताया था इसका रिजल्ट. a complement whole complement is a बेसिकली, राइट. बट स्टिल अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करें तो कैसे करेंगे? जो हमें दिया है, मैं सबसे पहले a complement ले लेता हूँ. a complement मतलब इसको छोड़ के बाकी सब लेने हैं. 5 6 7 8 9. अब a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी इसको छोड़ दो, बाकी सब ले लो. तो दैट इज द सेट a itself. ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है. a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू a. एंड नेक्स्ट पार्ट इज b minus c होल कॉम्प्लीमेंट. आई विल डू इट हियर. इट इज b minus c whole complement. The last part.
तो फर्स्ट आई विल गेट b माइनस सी. b माइनस सी मीन्स b और c में b वाले ले लेने हैं बट c वाले नहीं लेने हैं. 2 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 6 लेंगे. जो इसमें कॉमन है वो इंक्लूड नहीं होंगे. 2, 4 और 6 नहीं आएगा, 8 आएगा. Now what is b minus c complement? I think now you can do. Now this complement will be with respect to u, with respect to the universal set. ठीक है, तो I think that you can try. You will leave 2 8 नहीं लेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लेंगे, यानी 1 3 4 5 6 7 9 ये सब लेंगे. ठीक है. So question 1 we have completed. Let's come to the second one now. If u equal to, u is the universal set, a b c d e f g h, d e f g h. Find the complement of the following sets. A set is given a b c, so we have to get the complement of this. So a complement is, leave ABC and take all other D, E, F, G, H. Second part, B equal to D, E, F, G. D, E, F, G. So what is B complement? That is, leave all these elements A, B, C and H also. That's B complement. C is what? A, C, E, G. So C complement is, leave all this and take others. B you have to take, C is here, you will not take. D you have to take, D, E, F you have to take, H you have to take. That's all. So fourth part, you may give a try to it. It's not the difficult one. D equal to, it is F, G, H, A. I told you the order of the elements can be changed in the set. So leave all these elements and take all others which are included in the group. इनको नहीं लेंगे इन एलिमेंट्स को, बाकी के ले लेंगे. So that will be D complement. So you try it yourself. I am moving to the next one. Question 3. It is taking the set of natural number as universal set. So universal set here is 1, 2, 3, so on. That means whatever elements we are taking, all those are from the set of natural numbers. First part is, it is x such that x is an even natural number. अगर यही क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में होता तो हमारे नंबर्स होते 2, 4, 6, 8. हम छोड़ देते, बाकी क्या लिखते. सपोज यही इसी सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लूं तो क्या होगा. ठीक है. एंड लेट्स से दिस सेट इज ए. सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज द सेट. तो व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट है. ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता. 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. That is the set of odd natural numbers. क्लियर. तो सेट बिल्डर में, तो सेट बिल्डर में लिख लेते हैं इसको. X is that मैं, because universal set is set of all natural number, can I write x belongs to n and x is even. छोड़ देंगे तो क्या बनेगा. odd. सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते थे. x says that x is an odd natural number, ऐसे भी लिख सकते थे. Second part, let's say B is the set and what it is given. X says that x is an odd natural number.
तो मैं बी कॉम्प्लीमेंट को ऊपर मैंने ऐसे लिखा, अब मैं ऐसे लिख देता हूं x says that x is an even natural number। क्लियर है? कहने का मतलब यहां पे a कॉम्प्लीमेंट b और b कॉम्प्लीमेंट a है। थर्ड पार्ट देखें, x says that x is a positive multiple of 3, let C be the set x such that x is a positive multiple of 3। क्लियर? तो C कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो लिखेंगे x such that x is not a positive multiple of 3, यानी नहीं होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए। एंड ये जरूर लिख देना x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर यही लिख देना x इज नॉट ए पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई एम गोइंग टू दिस वन। Next is fourth part. X says that x is a prime number. अब अगर आपने यहां पे लिख दिया कि x is a composite number, कॉम्प्लीमेंट इसका, तो पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर्स का सेट छोड़ दें नेचुरल नंबर में तो 1 भी आता है। अगर हम कंपोजिट लिखते हैं तो 1 उसमें नहीं आता, तो मैं सिंपली इसमें लिखूंगा लेट्स से द सेट इज D, तो D कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा x इज दैट, बिकॉज 1 इज द एक्सेप्शनल केस, नीदर इट इज प्राइम नॉर इट इज कंपोजिट। तो अगर कोई ये लिख देता है x इज ए कंपोजिट नंबर तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, रादर मैं लिखूंगा x इज नॉट ए प्राइम नंबर। और यहां डिनोट करने की जरूरत नहीं है x बिलोंग्स टू n, बिकॉज प्राइम नंबर्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन नेक्स्ट पार्ट देखें, ये फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखें, लेट E be the set x says that x is a natural number divisible by 3 and 5। x says that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो E कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा x such that x belongs to n, comma x is not, x is a natural number। ये पूरे सेंटेंस की जगह मैंने लिख दिया x belongs to n, वही मतलब हो गया। अब लिखूंगा x is not divisible by 3 or 5, divisible by 3 और 5, यानी दोनों में से कुछ भी किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, that is sixth part। let f be the set x such that x is a perfect square, x is a perfect square। f कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, x such that सबसे पहले x belongs to n, x is not a perfect square, x is not a perfect square, complete। then seventh part, x is a perfect cube। देखिए नेक्स्ट पार्ट है x is a perfect cube, वही लिखना है x belongs to n। ये क्यों लिखना है x belongs to n, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है, तो वहां पे लिख देंगे x is not a perfect cube। तो ये पार्ट मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, सिर्फ अगर करना है तो मैं ऐसा करता हूं, इसको लिख देता हूं, सेवंथ पार्ट है ये, सेवंथ पार्ट। इट इज x such that x is a perfect, क्वेश्चन में यहां क्यूब दिया है, और इस सेट को मैं g ले लेता हूं, लेट्स से
तो G कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, X इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये भी हो गया 7. लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Fifth, sixth, seventh, eighth part. Let H be the set. And here X such that X plus 5 equal to 8. X such that X plus 5 equal to 8. तो हम लिखेंगे H complement X such that X plus 5 is not equal to 8, comma X belongs to the set of natural number. Right? Ninth now. It is X and let's say this is ninth part. Let I is the set. क्या है? X is that 2x plus 9, 2x plus 5 sorry, equal to 9. I complement क्या बन गया? X such that 2x plus 5 is not equal to 9, where X belongs to set of natural numbers. Okay. Then 10th. Part. Let's say set is J now. X such that X is greater than or equal to 7. मतलब या ग्रेटर है या इक्वल है, तो हमें लेना ना इक्वल हो ना ग्रेटर हो. हम लिखेंगे X such that X is less than 7. X belongs to set of natural number. ठीक है. 11th है, तो I think one part now you can try. ठीक है. It is X such that X belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10. तो हम लिखेंगे 2x plus 1 is less than or equal to 10. ठीक है. So I am clearing this one. Taking up the next question. Question 4. It is U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A is a set 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. B is a set 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. The first part is verified, but we need to verify A union B complement is equal to A complement intersection B complement. If you remember, ये डी मॉर्गन्स लॉ था और हमने प्रूव किया था इसको यूजिंग वेन डायग्राम. तो अभी क्वेश्चन में ऐसे तो ये प्रूव करेंगे रिजल्ट को. सबसे पहले मैं LHS ले लेता हूँ. LHS में सबसे पहले A यूनियन B ले लेंगे. क्या बनेगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what is A union B complement? That means इन सबको छोड़ दो. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को बचा 1. ठीक है. अब मैं आता हूँ RHS पे. RHS है A complement. तो लेट मी फर्स्ट फाइंड A complement. वो बन जाएगा 1, 3, 5, 7, 9. क्लियर. उसके बाद मुझे B complement चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay. So I need A complement intersection B complement. It is 1 and 9. LHS क्या आ रहा था? 1. So that means कहीं हाँ यहाँ पे गलत है. What's wrong here? Let me see. जब हमने complement लिया इसका, तो complement का मतलब leave all these elements, ये छोड़ देंगे, तो 1 भी आएगा और 9 भी आएगा. तो here I should get 1 and 9. Please make the correction. Therefore LHS equal to RHS. और ये कौन सा ला है? डी मॉर्गन्स ला है.
I am coming to the second part. So I am going to erase this one. Second part is A intersection B whole complement equal to A complement union B complement. Again it is De Morgan's law. Let me take LHS. A intersection B. What it is? दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है. Anything else? 3, 5, 7, 4, 6, 8. No, nothing is common. So what is A intersection B whole complement? That means 2 को छोड़ दो, बाकी सब लिखने हैं. 5, 6, 7, 8, 9. क्लियर? अब आते हैं RHS पे. RHS में मैं एक कॉम्प्लीमेंट लूंगा सबसे पहले. एक कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1, 3, 5, 7, 9. व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट? 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Clear? Now I have to take this union B complement, which is 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Just see whether they are equal. एक 2 एलिमेंट इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो लिख सकते हैं LHS equal to RHS. That's all in this question. Let me move on to the next one. It is draw appropriate Venn diagram for each of the following. Question 5. A union B complement. If you refer my video where I have done this union and intersection, all the Venn diagrams I have shown there. So you please see that video. Still I am doing one part for you. It is A union B whole complement. So let me take this as the universal set U, then set A, set B. A union B means the complete A or B. That means यानी कि A और B पूरा complete ले लिए. अब इसका complement इसको छोड़ के leave it and take the rest of the part. So I am just showing it by crosses. So this cross area denotes A union B complement. या तो मैं एरो लगा लूं या यहाँ पे शो कर दूं क्रॉस 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 एरिया shows A union B whole complement. Clear? So I have drawn this Venn diagram जहाँ पे मेरी ये वाली वीडियो है यूनियन इंटरसेक्शन की, ऑपरेशन ऑन सेट्स की और वेन डायग्राम की कटी है. You please refer to that. So I am coming to question 6 now. It is U be the set of all triangles in a plane. U क्या? Set of U is the set of all triangles in the plane. In the plane A. यानी कि इसमें हर टाइप का ट्राइंगल आएगा. A क्या? A is the set of all triangles with at least one angle different from 60. With at least one angle different from 60 डिग्री. इसका मीनिंग समझो. इसका मीनिंग है कि वो ट्राइंगल्स जिनमें कम से कम एक एंगल 60 नहीं है, हो सकता है 2 नहीं हो सकता है मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक तो 60 नहीं है. ठीक है, 2 भी हो सकता है 60 नहीं हो सकता है तीनों 60 नहीं हो.
अब हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इट विल बी सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों 60 है और ए सेट है कि कम से कम एक एंगल 60 नहीं है, कम से कम एक, हो सकता है दो 60 नहीं हो सकता है तीनों ही 60 नहीं हो, पर जब कम से कम एक 60 नहीं होगा तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल नहीं बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये वाला सेट छोड़ देना है, तो इट विल बी सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स नेक्स्ट देखें, इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। Seventh and the last question of this exercise. Fill in the blanks. First part, A union A complement. ये देखें, सपोज ये सेट है U, ये सेट है A, हमें पहले A कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। A तो ये सेट है, इसको छोड़ दें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये शो करके A कॉम्प्लीमेंट, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शो A कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, A भी लेना है और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, कहने का मतलब ये लाइंस भी लेनी है और हॉरिजॉन्टल भी लेनी है, तो दैट इज द कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। देन phi intersection A, sorry it's not phi, it is phi complement, phi complement intersection A, यहां देखिए ये सेट U ये A। phi complement का मतलब क्या हो गया, phi complement का मतलब हो गया था यूनिवर्सल सेट, phi को छोड़ दो बाकी ले लो। अब ये यूनिवर्सल सेट में और इस सेट A में कॉमन क्या है, दैट इज ओनली द A पार्ट, सो इट इज A। थर्ड पार्ट, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, देखें इसी को देखें, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, ये वाली लाइन स्लैंट लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी 5। कहने का मतलब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फोर्थ पार्ट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल देखें 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन A, तो 5 कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन बन गया 5, सॉरी इट इज इंटरसेक्शन, आई एम सॉरी इट इज इंटरसेक्शन A इक्वल टू 1, तो इट इज 5 इंटरसेक्शन A। 5 और A के बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 ही कॉमन है, तो द आंसर हियर इज 5। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था 5 कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली ये क्वेश्चन बन जाता है U इंटरसेक्शन A। ठीक है, पूरे यूनिवर्सल सेट और A में क्या कॉमन है, ठीक है, तो वो हमारा आंसर A ही आएगा। So by this we have completed this. Next time we are going to take some practical problems on unions and intersections.